So up till now, what I have told is clear. I think so, because it's simple. We want to find out that cost. We want to reduce the cost, and we want to find out best thetas or best weights in case of neural network in order to reduce our cost. Okay. Now, uh, gradient descent says that if we update thetas such that there is if we find out this change, we can update our thetas. So what if I find out this change for each and every step of a neural network? So if I get this change, then I can calculate theta. So if I get this change for over here, I will get my theta. I will, if I calculate, uh, so at every layer, you know that each and every layer is dependent on each other. Let's say we have three layer complex function. Complex function looks like this. There is a and there is a B and there is a C. So let's forget about this complicated network. Let's see we have a simple network like this. Now C is dependent upon B and B is dependent upon A. So I can identify how much do I change in B so that I get best change in C. So for last node, simply I can calculate dC by dB, that is uh, dC by dB, that is how much do I change in B so I get the perfect dC, right? For over this I can calculate dB by dA, that is how much do I change in A so that I get this best overall value. This way, because B is dependent on A, I cannot directly say that how I cannot directly calculate how dC by dA, because all the nodes are interconnected, right? So if I want to finally calculate how much change in A is affecting final C, uh, in that case I would have to calculate it using dC by dB multiplied by dB by dA, right? Because each and every node is dependent upon the previous node, and my aim is to identify the change in thetas, how much do I change in theta, so that I get the best j theta with the least error. Okay, so I want to identify j theta, and I want to give such thetas as input, which gives best j theta. Now there are multiple layers in between, multiple layers and hidden layers in between. So I cannot directly calculate how is my theta affecting j theta. So at every layer, I will calculate how my next layer is affecting my, how my previous layer is affecting my next layer. So at every layer, I can calculate. Similarly, that process I'm showing over here, that if I want to calculate how change in C with respect to change in A, so I can calculate it by multiplying dC by dB and dB by dA. And dC by dB I can know from here, and dC by dB, dB by dA I can know from here. So I will multiply these two entities and I will get how much change in A would affect change in C, right? So this is what we were doing that day. So we were doing that, we want to identify that change in this, how we ultimately find out the j that is cost, and we want to reduce that cost, so that we want to find out the best thetas, and these thetas are updated at every step uh, using the change. So this is called a back propagation algorithm, because first of all we need to calculate this dC by dB, then we need to calculate this dB by dA, and then uh, from here, if I want to calculate dC by dA, that is my change of final with respect to my input is A and final is C. So if I want to calculate the change in final J or the cost function with respect to my input A, in that case I would have to start from last node. So this is called a back propagation. So Yes, back ma'am. propagation, yes. Ma'am, can you explain this concept with an example, please? यस Yes. मैम, ये ए बी सी क्या है एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा, कोई एग्जांपल से समझा दो। क्या ये मतलब पर्टिकुलर एक ABC डेटा के लिए है या पूरे के लिए उसके लिए है, पूरे मतलब जो भी डेटा होगा हमारा उसके ABC लिए? 3 नोड्स हैं, ठीक है। हम अभी फिलहाल न्यूरल नेटवर्क की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक सिंपल कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात कर रहे हैं। मान लो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन था कुछ इस तरह का,
3a-2 हमें इसे नेटवर्क से लर्न करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक न्यूरल नेटवर्क बना लेंगे। लेट्स से एक फर्स्ट नोड है, वो कैलकुलेट करती है, ये हमारा इनपुट है a। फिर सेकेंड नोड है, वो हमारा कैलकुलेट करती है b, दैट इज़ a-2। जब अगर मुझे ये वाला फंक्शन लर्न करना है तो सबसे पहले मैं a-2 कैलकुलेट करूँगी एंड देन मैं 3a-2, राइट। Somebody is whosoever is unmuted their mic. Okay, so simply just wait a second. So ये एक सिंपल कॉम्प्लेक्स फंक्शन है 3a-2, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को आई वांट टू लर्न विद अ न्यूरल नेटवर्क। अब तो अगर मुझे कैलकुलेशंस करनी है, सो फर्स्ट थिंग व्हाट आई विल डू इज आई विल कैलकुलेट a-2, राइट, एंड देन आई विल कैलकुलेट 3a, ठीक है। तो सिंपली आई विल डू a-2 एंड देन आई विल कैलकुलेट 3a, 3 ऑफ वट एवर जो भी पीछे आया था। तो a-2 मान लो, इसको मैं ले लेती हूँ b, and I will calculate b over here, and जो पीछे लास्ट वाली नोड पे आया था that was b, so 3b I will write over here and I will calculate that function, right। ये तो सिंपल सी बात है, इसको मैं c बोल देती हूँ उस नोड को, ठीक है। ABC ये एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क बनाया है यहाँ पे कि अल्टीमेटली हमें क्या करना है कि हमें ये कैलकुलेट करना है कि हमारा इनपुट A पे हम कितना चेंज करें कि हमारा फाइनल जो आउटपुट में चेंज आए वो कुछ इस तरह से आए कि हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो ये ओवरऑल आइडिया है। दिस इज इन दिस न्यूरल नेटवर्क हाउ हमें, अगर हमारे पास मल्टीपल हिडन लेयर्स होते, ठीक है, बहुत सारे हिडन लेयर्स हैं, लेट्स से we have a hidden layer 1, hidden layer 2 and multiple neurons, multiple connections, ठीक है। तो लास्ट नोड इज डिपेंडेंट ऑन दिस नोड is dependent on this node, this node is this layer is dependent on previous layer. So each and every layer, calculation on each and every layer is dependent on calculations on previous layer. Or what I want to know is, I want to know how much I want to know the values of inputs, not the, I don't want to know what is the value in these hidden layers. I don't want to know. I want to know how much input parameters should be there so that my final cost, that is j, it is reduced. So my ultimate goal is to find out j, that is cost function, and I want to know that how much theta should I set. So suppose I have set theta to let's say 5, and I say if जब मैंने इनिशियली थीटा 5 रखा था तो मेरा जे थीटा ऐसे आया था कुछ 100, ठीक है, और मेरा एम था कि जे थीटा को मुझे रिड्यूस करके पहुंचाना है 0, ठीक है। तो जब जे थीटा को 0 कैसे पहुंचाना है, ये इसके लिए हमें ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम पता है, और ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम कहती है कि अगर हमें थीटा अपडेट करने हैं हर एक स्टेप पे, तो हमें थीटा माइनस अल्फा जे थीटा पता डेल जे थीटा और डिवाइडेड बाय विद रिस्पेक्ट टू एवरी पैरामीटर, थीटा 1, थीटा 2 एंड सो ऑन। सो अगर हमें ये पता चल जाए तो हम थीटा को अपडेट कर पाएंगे इजीली। और ये पता करने के लिए जे थीटा को थीटा 1 के रिस्पेक्ट में वी नीड टू आइडेंटिफाई। सो इसके लिए हमें जे थीटा के बीच में बहुत सारी लेयर्स हैं, तो हम डायरेक्टली नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, राइट। तो क्योंकि हर एक लेयर प्रीवियस लेयर के आउटपुट पे डिपेंड करती है, तो हम हर एक लेयर पे, अगर इस लेयर को मैं ABC या फिर XYZ लेट्स से मान लेते हैं, XYZ है, और इसको P मान लेते हैं, इसको फर्स्ट इनपुट्स को Q मान लेते हैं। तो अब हमें Q को निकालना है विद रिस्पेक्ट टू P। तो हमें पता है कि P Z पे डिपेंड है, Z Y पे डिपेंड है, और Y X पे डिपेंड है। तो इस वाली लेयर पे मैं dP बाय dZ कैलकुलेट कर सकती हूँ, इस वाली लेयर पे मैं dZ बाय dy कैलकुलेट कर सकती हूँ, इस वाली लेयर पे मैं dy बाय dZ कैलकुलेट कर सकती हूँ।
एक्स सॉरी, ठीक है, और इस वाली लेयर पे मैं dx बाय dq कैलकुलेट कर सकती हूँ। लेकिन मुझे चाहिए एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए एग्जैक्टली मुझे चाहिए इस p का इफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस q, इनपुट q, ठीक है। तो हमें चाहिए dp बाय dq। तो dp बाय dq को हम इस तरह से लिख सकते हैं, dp बाय dz इंटू dz बाय dq, ये हम लिख सकते हैं। फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं dp बाय dz, क्योंकि हम केवल dz से ही तो मल्टीप्लाई किया है अप और डाउन में, ठीक है। फिर हम इसको dz को हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, इस वाले dz को हम फर्दर ब्रेक करके लिख सकते हैं dz बाय dy इंटू dy बाय dq, ठीक है। फिर हम इस dy को फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, I'll write it with another pen, इसको हम लिख सकते हैं dp by dq is equals to सो मैम बेसिकली क्या है कि ग्रेडियंट डिसेंट में सिर्फ एक लेयर होती है, इसलिए हम सिर्फ डी जे बाई डी थीटा कैलकुलेट करते हैं, बट इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है क्योंकि मल्टीपल्स लेयर्स है, इसलिए मतलब यही है कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फाइनली जो कैलकुलेट करना है वो dp बाय dq कैलकुलेट करना है। dp इज द आउटपुट, यहाँ पे मैंने j थीटा को, ये वाली लेयर को p माना है, ठीक है, और इस वाली लेयर को q माना है, इनपुट लेयर को q या फिर स्मॉल q बोल देते हैं। तो dp बाय dq अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे कैलकुलेट कर रही हूँ, पहले मैंने dp बाय dz किया इंटू dz बाय dq किया, फिर z को फर्दर ब्रेक किया और ब्रेक करके लिखा dz बाय dy इंटू dy बाय dq, फिर इसको dy को फर्दर ब्रेक किया, dy को फर्दर ब्रेक करके लिखा dp बाय dz इंटू dz बाय dq इंटू dy को सॉरी dy, दिस इज y, एंड dy को फर्दर ब्रेक करके वहाँ हम लिख सकते हैं dy बाय dx इंटू dx बाय dq। अब मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ ये dp बाय dq, क्यों कैलकुलेट कर सकती हूँ इजीली, क्योंकि वी हैव दिस dz और ये dz तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला dy और dy कैंसिल हो जाएगा, ये वाला dx और ये dx कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि dp बाय dz मुझे पता है फ्रॉम लास्ट वाली लेयर, फिर dz बाय dy मुझे पता है फ्रॉम सेकेंड लास्ट लेयर, ठीक है, फिर dy बाय dx पता है फ्रॉम थर्ड लास्ट लेयर। तो अब मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ dp बाई dq, राइट। तो बेसिक आइडिया ये है कि लास्ट वाली लेयर का चेंज हमें फर्स्ट वाली लेयर, लास्ट वाली लेयर का बेसिकली कॉस्ट, तो जो कॉस्ट का हमें चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पैरामीटर्स निकालना है, ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमारे पास इतनी सारी लेयर्स थी ही नहीं, तो हम डायरेक्टली निकाल लेते थे, हमारे यहाँ बस इनपुट होता था थीटा और आउटपुट होता था जे थीटा, तो हम डायरेक्टली उसको कैलकुलेट कर लेते थे। यहाँ पे क्या है, हमारे पास बहुत सारी मल्टीपल लेयर्स हैं और हर एक लेयर, लास्ट वाली लेयर प्रीवियस वाली पे डिपेंड है, प्रीवियस वाली उससे प्रीवियस वाली पे, तो हम पहले लास्ट वाली का चेंज प्रीवियस वाली पे निकाल लेंगे, फिर सेकेंड लास्ट वाली का थर्ड लास्ट वाली पे निकालेंगे एंड सो ऑन, और फिर इन सारे सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमें फर्स्ट वाली लेयर का चेंज विद रेस्पेक्ट टू लास्ट लेयर हमें तब मिलेगा। तो ये है ओवरऑल आइडिया कि हमें क्यों करना पड़ रहा है ये सब। अब किसी को समझ नहीं आया तो बताओ। अब समझ में आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो यही था, यही ओवरऑल आइडिया है न्यूरल नेटवर्क का, और इसको बैक प्रोपोगेशन बोलते हैं, ठीक है। बैक प्रोपोगेशन में हम ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करते हैं, और वो ग्रेडियंट्स हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें कॉस्ट रिड्यूस करनी है, और हम जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हम कैलकुलेशंस करते हैं y के लिए, ठीक है। हम तो हमारा न्यूरल नेटवर्क वर्क कैसे करेगा, स्टेप 1 में हम कुछ रैंडम w रख देंगे, कुछ रैंडम वेट्स रख देंगे, और फिर हम उसको हम ट्रेन कराएंगे और y की एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। y की एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जब हम y की एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और y की ओरिजिनल वैल्यू है हमारे पास, उससे हम कॉस्ट निकालेंगे। अब हमारे पास कॉस्ट आ गई,
जैसे ही हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी हम उसे बैक प्रोपेगेट करेंगे। हम हर एक स्टेप पे चेंज इन दिस कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस लेयर निकाल लेंगे, फिर इस लेयर का विद रिस्पेक्ट टू दिस लेयर निकाल लेंगे, फर्स्ट लेयर, एंड फिर हम फाइनली चेंज ऑफ दिस लास्ट कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू जो इनपुट वेट्स दिए थे वो निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करके हर एक लेयर को। ठीक है, तो जब हमने मल्टीप्लाई करके चेंज निकाल लिया, अब हम ग्रेडियंट डिसेंट लगा सकते हैं। और ग्रेडियंट डिसेंट कहती है कि हम थीटा को अपडेट, थीटा यानी कि वेट्स को अपडेट कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अब हमने चेंज निकाल लिया है, चेंज इन आउटपुट विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन जे थीटा विद रेस्पेक्ट टू थीटास हमने निकाल लिए। चेंज इन जे थीटा विद रेस्पेक्ट टू इनपुट पैरामीटर्स दैट वर थीटास, थीटा 1 और वेट 1। यहाँ पे हम वेट भी लिख सकते हैं और इसको हम कॉस्ट भी लिख सकते हैं, कॉस्ट लॉस सब सेम ही है। ठीक है, तो अब हम अपडेट कर देंगे अपने थीटा को। जब हमने अब थीटा को और वेट्स को जब हम इसे अपडेट कर देंगे, फिर हम फिर से लर्न कराएंगे पूरा ओवरऑल सारा नेटवर्क। जब हम पूरा नेटवर्क फिर से लर्न कराएंगे तो फिर से हमारे पास y प्रेडिक्टेड वैल्यू आ जाएगी। जब y प्रेडिक्टेड वैल्यू आ जाएगी फिर हम उसको फिर y से सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर हम कॉस्ट निकाल लेंगे। फिर हम कॉस्ट जब हमने निकाल लिया फिर से हम वो वाला प्रोसेस बैक प्रोपेगेशन वाला रिपीट करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड प्रोपेगेशन एंड बैकवर्ड प्रोपेगेशन। तो जब हम फॉरवर्ड में जाएंगे तो हम वैल्यू कैलकुलेट करते जाएंगे, और जब हम बैकवर्ड में जाएंगे तो हम ग्रेडियंट कैलकुलेट करते जाएंगे। तो दिस इज व्हाट ओवरऑल न्यूरल नेटवर्क इज। अब इस न्यूरल नेटवर्क की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? तो एक सिंपल चीजें हैं। जब भी आप आई एम राइटिंग x1